मंडी में आग से झुलसकर 8 लोगों की मौत, भंगार और लकड़ी के गोदामों में भीषण आग। बीजेपी शिवसेना के बीच शीत युद्ध जारी, शिवसेना दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारेगी अपने उम्मीदवार। पाकिस्तान का झूठ बेनकाब, वेबसाइट mobile.in का दावा, कराची में शान से रहता है दाऊद, सबूत के तौर पर ऑडियो जारी। दाऊद के टेप पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा भारत की पाकिस्तान से हुई थी बात, फिलहाल पाक के जवाब का इंतजार। और झारखंड में बीजेपी के नए गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के विरोध में आदिवासी संगठन नेता ने किया बंद का ऐलान, बंद को झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन। Right, welcome, welcome to the Inside Story. My name is Rajiv Bajaj and of course you're watching me on Lemon News. आप देख रहे हैं मुझको लेमन न्यूज़ पर। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB। आज हम बात करेंगे कश्मीर के बारे में। जी हाँ, कल भी बात करी थी, आज भी बात करेंगे। जनाब सैयद अली शाह गिलानी साहब ने कल ये कहा कि इस चुनावी प्रक्रिया को वो मानते ही नहीं हैं। जी हाँ, he said he doesn't believe in the entire election process. और जनाब जो And Naeem Khan, of course, says that as far as this entire election process is concerned, we are neither impressed nor do we support it. I mean, but then anyway, that's their version. At the moment, with us, we have Naima Mahjoor, active member of the PDP, formerly BBC correspondent of in Srinagar. Naima ji, namaskar. Ji, how are you? I hope. Thank you so much, ma'am, for joining us. Thank you very much. Actually, I was based in London, not in Sweden. Right, you were based in London. I'm so sorry. Yes. I stand corrected. Naima Mahjoor of the BBC, based in London. Ma'am, in terms of the PDP has laid down a couple of conditions, 3 conditions to be exact, in front of the BJP. Now, you've been a journalist. Once a journalist, always a journalist. There is no way that the journalistic bug can get out of your blood. That will not happen. As a journalist, do you think that the Bharatiya Janata Party is going to agree to your conditions, ma'am? Yeah, first thing about being journalist and then becoming politician is a very hard task. Right. जी दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है, जी हाँ. It's a topsy-turvy. So regarding these conditions, actually what has happened, we haven't laid out any conditions yet because the formal talks have not started yet. जी. तो अभी हमारे पास 3 proposals आए हैं from all parties like NC, Congress and BJP. जी. तो अभी party leadership is deliberating on all those talks and the proposals, what they want from us, and we are talking what we can get from them. So इस वक्त ये इनिशियल स्टेज है. अभी हम उनके साथ जो दूसरी पार्टीज हैं like BJP and others, we haven't started dialogue yet, nor we have said anything about what will be our. नहीं जी, but that comes as a bit of a surprise. कहने का मतलब ये हुआ कि formally nothing has started as yet. मतलब formal discussion अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन I am reasonably certain back channel discussions would definitely be going on. और जिसकी वजह से अगर आप आज टाइम्स ऑफ इंडिया की साइट देखें, बाकी जितनी भी अखबारें हैं उनकी साइट्स अगर आप देखें, वहां पर आ गया है कि भाई पीडीपी's कंडीशंस आर के आर्टिकल 370 पे एश्योरेंस चाहिए बीजेपी से, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पर एश्योरेंस चाहिए, उसके अलावा 2-3 चीजें और हैं जो पीडीपी ने कही हैं. लेकिन आपके मुताबिक, एंड ऑफ कोर्स विच इज ऑल्सो ट्रू, विच इज द ऑफिशियल पोजीशन ऑफ द पीडीपी, नथिंग ऑफिशियल हैज स्टार्टेड एज येट. अब आप ये बताएं कि जहां तक पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, दैट वुड बी रियली एंड ट्रूली a really representative government. That is my opinion. That, you know, because the PDP is the main party in the valley, और भारतीय जनता पार्टी सबसे प्रमुख पार्टी है जम्मू की. तो जम्मू एंड कश्मीर both, if they are both in government, that will be a really representative government. उसमें कोई शक ही नहीं है कि जम्मू की रिप्रेजेंटेशन बीजेपी को मिली है, and we cannot doubt it and we cannot ignore it. जी.
इसी तरह से कश्मीर में पीडीपी को मेजॉरिटी मिली है जी, और पीडीपी का हक बनता है कि वो हुकूमत बनाएंगे। बिल्कुल दुरुस्त बात। लेकिन अब इसमें देखना है कि पीडीपी का एक स्टैंड है, उसका अपना एक एजेंडा है। जी। इसी तरह से जो बीजेपी है जी। उनका अपना एक स्टैंड रहा है और उनका जिस तरह का स्टैंड है वो दैट्स इनकम्पैटिबल विद पीडीपीज स्टैंड। लेकिन मैम जहां तक इस चीज का सवाल है, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है, अटल बिहारी वाजपेयी जिसके प्रधानमंत्री बने 3 बार, एक बार 13 दिन की सरकार चलाई उन्होंने, फिर 13 महीने की चलाई, फिर उसके बाद 6 साल की सरकार उनकी चली। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के जो 3 आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं, यानी आर्टिकल 370 का रिपील हो गया, अब राम मंदिर की बात हो गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, इन तीनों चीजों को बैक बर्नर पे डाल दिया गया। ये कहा गया कि भाई हम लोगों की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, लिहाजा हम ये पास नहीं करा सकते, तो फिलहाल कोalition के लिए हम इन चीजों को नहीं लेकर के जाएंगे। सो द भारतीय जनता पार्टी इन द पास्ट हैज प्रूव्ड टू बी वेरी अकोमोडेटिव। जी बताएं। एग्री विद यू, इसलिए कि वाजपेयी जी ने जो उस वक्त जो उनका विजन था जी, और उसी को लेके फिर पीडीपी ने जब 2002 में हुकूमत बनाई और उस विजन को आगे लेके जी, peace process started, and then we saw LOC border opening and all these talks and people to people contact. जी, So much happened. These CBMs we started at that time. जी, लेकिन उसके बाद से अब तक so much time has passed now. जी। और इस वक्त वाजपेयी जी नहीं है, इस वक्त मोदी जी है। जी, और मोदी जी और वाजपेयी जी में काफी फर्क है। हम गवर्नमेंट अगर हमें बनानी हो, जी। उसमें चाहे हम किसी के साथ भी बनाएं, पीडीपी 1 घंटे में गवर्नमेंट बना सकती है किसी के साथ भी। जी। But the important point is what you have promised to people, are you going to fulfill that? That's if right. you are BJP. So that's the point. That's the sticking point which we have to discuss first. नईमा जी यहां पर मैं आपसे एक और बात पूछता हूं। You were in London, you're a successful journalist, you have worked for what is possibly the most respected and respectable and credible news organization in the world. You were in the BBC. Now my point is, the rest of the young people of Kashmir, all the younger generation of Kashmir, now we have lost 2 to 3 generations of Kashmir only in lots and lots of troubles. My point is, they also have aspirations. They also want to become IT engineers. They want to go into aviation. They want to go into so many things. So they want to play cricket. They want to play hockey. They want to play football. The entire world is opening up. The entire country is opening up. My point is, why can't we give that kind of a vision to the young people of Kashmir that, hey, listen, we are forming the government for you. आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए हम लोग ये सरकार बना रहे हैं ताकि आप IT इंजीनियर बन सकें, ताकि आप जाकर के सिलिकॉन वैली में काम कर सकें, ताकि कश्मीर जो है, कश्मीर में जैसे श्रीनगर है फॉर एग्जांपल, यही सवाल मैं हर एक से पूछता हूं, व्हाई कैन श्रीनगर बी लाइक बैंगलोर, द IT हब ऑफ साउथ एशिया? मतलब क्या कमी है कश्मीरी लोगों में? जी बताएं। उसमें आपको करना होगा, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, इंडियन गवर्नमेंट है, जी। इंडियन मीडिया है एंड इंडियन इंटेलेक्चुअल जो हैं, जी। जो भी इंडिया की सिविल सोसाइटी है, उनको कोशिश करनी होगी कि पहले जो हमारे कश्मीर और इंडिया के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ठीक करना होगा। क्योंकि फॉर द लास्ट 7 डिकेड्स आप देखेंगे जम्मू कश्मीर वो स्टेट नहीं है जो भारत की दूसरी रियासतें हैं। जम्मू कश्मीर का 47 से लेके आज तक एक प्रॉब्लम है जिसको देखना होगा। और हर वक्त जो यहाँ के अवाम पे हुकूमतें, गवर्नमेंटें थोपी गई हैं दिल्ली की तरफ से, तो वो इस वक्त भी देखा जा रहा है। अगर आप देखेंगे इस वक्त आपने कहा कि 70% वोट्स डाले गए, वो एक तरह से लोगों में दोबारा कॉन्फिडेंस शुरू हो गया था कि नहीं, डेमोक्रेसी कोई चीज है जिस पे हम निर्भर कर सकते हैं, जो हमारे जो मसाइल हैं उसको हल कर सकती है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम देखते हैं फिर पोस्चरिंग फ्रॉम बीजेपी एंड द बीजेपी गवर्नमेंट, क्योंकि आप देखेंगे मोदी जी इतनी बार वहाँ जम्मू कश्मीर आए और लास्ट बार जब उन्होंने देखा कश्मीर के इलेक्शन कंप्लीट हुए थे तो उन्होंने कहा कि अपनी तकरीर में कश्मीर ने सारी सीटें कश्मीर वालों को दी हैं, तो जम्मू तो आप सिर्फ बीजेपी को वोट दो जी, जिससे एक तरह से वेज जो है बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर, उससे पोलराइजेशन शुरू हो गई। लेकिन नईमा जी ये तो चुनाव में होता ही है, सिंपल बात है। जहां तक पीडीपी का सवाल है, मेरा बहुत
Ma'am, they are both very matured leaders. Mufti Saab is a very, very matured man. You know, we have met him when he was Home Minister. I have interviewed him myself in 1989. He was the first Muslim Home Minister of the country. And he is a very matured person. And so is Narendra Modi. मेरा ये कहना है कि आखिरकार जब पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी इकट्ठे होकर के बैठते हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका व्यक्तिगत व्यू क्या है, आपका पर्सनल व्यू क्या है कश्मीर के लिए, कि भाई कश्मीर के यूथ के लिए आप जो प्रिंसिपल जो आप मसाइल की बात कर रहे हैं, चलिए वो कब सॉल्व होगा, कैसे होगा, दैट्स अ सेपरेट इशू. ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज why can't the youth of Kashmir enjoy the same kind of facilities that the youth of Mumbai enjoy, that the youth of Bangalore enjoy? जी बताएं. देखिए मिस्टर बजाज, हमने कोशिश की थी 2002 में जब पीडीपी की सरकार बनी जी कांग्रेस के साथ, उसके बाद से ही कोशिशें शुरू हो गई. हमारे स्टूडेंट्स इंडिया के सभी यूनिवर्सिटीज में अगर आप देखेंगे जी आए वो जी पे स्टडीज करने गए और बहुत सारे स्टेट्स में वो एडजस्ट भी हो गए. लेकिन क्या होता है फिर इस तरह के स्टूडेंट्स के साथ इस तरह की वारदातें जो हुई हैं, उनके साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं वायलेंस के, तो उससे मेरी यूथ में दोबारा एक ट्रस्ट डेफिसिट शुरू हुआ कि नहीं, हम इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते, हमें सिक्योरिटी का मसला है. तो आप पहले अपने मुल्क में ये कह दीजिए कि भाई कश्मीरियों को आप हमेशा डाउट की नजर से देखते हैं. उन्हें तो पहले ये मानना होगा ना कि कश्मीरी जहाँ कहीं जाते हैं उन्हें शक से मत देखें जी. उसके मन में जो शक होता है कि मुझे कश्मीरी जान के हर कोई कहता है शायद ये टेररिस्ट है, तो उस पे वायलेंस होता है, तो पहले उसको करें. हमने भी यहाँ के स्टूडेंट्स ने एक कॉन्फिडेंस कोशिश की थी कि उनमें दोबारा कॉन्फिडेंस आए, वो निकले, बाहर जाएं, हिंदुस्तान की किसी भी जगह जाएं. लेकिन उससे बार बार जब आप फिर आर्टिकल 370 इंटीग्रल पार्ट इस तरह की चीजें, ये चीजें कहने की जरूरत नहीं है. इसका मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट के मन में भी इतना शक है कि वो बार-बार लेकिन नईमा जी यहाँ पर दो तीन चीजें क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है और ये मैं अपने दर्शकों से कहता हूँ. आई जस्ट नीड योर इंटेलिजेंस फॉर जस्ट हाफ ए मिनट. जहां तक कि कश्मीर का सवाल है, एक बार फिर अपने दर्शकों के सामने मैं ये बात रखना चाहता हूं कि आज की तारीख में भारत सरकार का हस्तक्षेप, इंडियन गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जम्मू एंड कश्मीर में, इट इज ओनली थ्रू आर्टिकल 370. अगर आज आप आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करते हैं तो यू आर लेटिंग गो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये सबसे बड़ी बात ये सबके सामने रखने वाली है कि आर्टिकल 370 के बगैर अगर आप आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करते हैं, वो जो होने वाला नहीं है, मतलब एटलीस्ट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 50 इयर्स, ये 100 साल तक तो नहीं होता है. आपकी खुद की जो इंटरवेंशन है, हाउ डू यू गेट अ वे इन? दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. नाउ माय पॉइंट इज दीज आर जस्ट पोस्चरिंग्स मैम. इलेक्शन के पहले पीडीपी ने कुछ कहा, बीजेपी ने कुछ कहा. मेरा यह कहना है कि चुनाव हो चुके हैं. नाउ यू हैव टू कम डाउन टू द वेरी ब्रास टैक्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन. पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, नॉट द आर्ट ऑफ एन आइडियलिस्टिक प्रोपोजिशन एज टू व्हाट यू वांट. द पॉइंट इज जी बताएं. I agree with you. इस वक्त जो सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो which is in Kashmir and Jammu and Kashmir at this time, we have to take a realistic view. जी हमें पता है इस वक्त कि यहाँ पे जिस तरह के स्टेक होल्डर्स हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, हमें कोशिश करनी होगी कि सबको साथ लेके चलें ताकि जम्मू कश्मीर की स्टेबिलिटी का सवाल है, हमें उस पर ध्यान देना होगा. इंटीग्रिटी का सवाल है, उस पर ध्यान देना होगा. तो पोस्चरिंग इस वक्त भी कुछ लोगों की है जिसको छोड़ना होगा. और no, but that needs to be ignored, ma'am. That needs to be completely ignored. As far as these people are concerned, they will keep posturing. After all, yesterday we had a gentleman called Sayyid Ali Shah Gilani on the show. We also had Naeem Khan on the show. They say they don't believe in the election process. They say that all these 71% people of Jammu and Kashmir, voters of Kashmir who have come out, they have come out under the gun. Mr. Bajaj, let me tell you one thing. जी. Democracy flourishes only when you got a dissent in that. Absolutely, we agree with you. I agree. I agree entirely. अगर किसी को इस पे एतराज भी है तो so he has a right to object. He has a right to object, but that does not necessarily mean that you have to agree with him. We agree to disagree. That's it. वही तो मैं कह रही हूँ, वो जो भी कहते हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि 70% वोट तो पड़े जी. और पार्टीज यहाँ पे जो 4 पार्टीज आई हैं उनको वोट पड़े हैं और उनके कैंडिडेट यहाँ पे कामयाब हुए हैं. लेकिन नईमा जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है, जो आप बोल रही हैं, आप ही की बात लेते हुए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो 70% यानी 70% वोट जो पड़ा है, उन लोगों की कोई एक्सपेक्टेशंस हैं? उन लोगों की आप सबसे एक्सपेक्टेशंस हैं? यानी 28 सीटें आपको मिली है, 25 बीजेपी को मिली हैं. यानी इलेक्टोरेट की मंशा यह है कि आप दोनों इकट्ठे काम करें. कहने का मतलब यह हुआ
जी नई वाली बताएं। हम तो बिल्कुल करना चाहते हैं और इस पे गौर हो रहा है। जैसे जिस तरह के मैंने आपसे कहा कि जो हमें ऑफर्स मिली है हर तरह से, जी। तो हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा वायबल गवर्नमेंट कौन दे सकता है, और जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा मैनिफेस्टो है, क्या हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि पीडीपी के बारे में मैं आपको एक चीज क्लियर कराना चाहती हूँ, पीडीपी सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं करती है। पीडीपी चाहती है कि जो भी यहाँ पे आपने देखा फॉर द लास्ट 2 डेकेड जी। जो यहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, वाकई हमारी यकीनन हमारी कोशिश कि यहाँ के नौजवान जो है उन्हें मौका मिले। यहाँ रोजगार के मसाइल हैं, जी। यहाँ बिजली अब इस मतलब 21st सेंचुरी में बिजली नहीं है इलाकों में। दुरुस्त बात है। इट इज शेमफुल मैम, इट इज शेमफुल। शेमफुल। अब आप देखिए, यहाँ अभी सैलाब आया है, हमारे लोग सड़क पे बैठे हैं जिनको घर भी नहीं है। इतने सारे मसाइल जिस रियासत में हो, वहाँ पे आप एडवेंचरिज्म नहीं कर सकते। वहाँ जिस तरह के एडवेंचर लोग करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आई एग्री विद यू। बात ये है कि ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, इसमें काफी माहौल खराब रहा है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि बजाय पोस्टरिंग के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके ये देखा जाए कि कैसे इस रियासत को इकट्ठा रख के आगे डेवलपमेंट की तरफ ले जाए। उसमें चाहे फिर बीजेपी या पीडीपी को बैठना पड़े, या जो ब्रॉड बेस कह रहे हैं कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बातें हो रही है, उसमें सभी वेलकम है। लेकिन देखना ये होगा कि बजाय गवर्नमेंट फॉर्मेशन सिर्फ सब कोई ग्रैब करना चाहते हैं पावर ग्रैब करने से पहले देखना चाहिए कि क्या हम डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि 6 साल जो हमने यहाँ पे बैड गवर्नेंस के देखे हैं, उससे यहाँ हालात काफी खराब। लेकिन मैम यहाँ पर आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, आपने कहा कि आप हर एक से बात कर रहे हैं, एक तरफ आपके पास हर एक से बात करने का मतलब है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, मतलब इन दोनों से भी बात चल रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वही नेशनल कॉन्फ्रेंस और वही कांग्रेस जिन्होंने मतलब इसको कह सकते हैं जिसको हिंदी में प्रशासकीय अव्यवस्था कहते हैं, मतलब परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमको देखने को मिला कश्मीर में। Now, how is it possible that you can even talk to those people for government formation? जी बताएं। No, you have to talk to everybody. Right. You can't ignore them. You have to talk, and you have to find a way. Even if BJP and PDP is going to make an alliance tomorrow, right? But we can't ignore Congress and National Conference. They have to be a strong opposition in assembly. Yes. और उनको भी काम करना होगा। If you believe in democracy, डेमोक्रेसी में सिर्फ पावर शेयरिंग नहीं होती है, आपको अपोजिशन को भी साथ लेके चलना है। तो पीडीपी हमेशा चाहती है कि जो भी गवर्नमेंट बने, जिस किसी के साथ भी बने, बाकी जो पार्टियां हैं वो हमारे साथ चले, ताकि मिलजुल के हम इस रियासत को। So which means you are not ruling out the possibility that there is a possibility that there may be a broad-based coalition with the PDP, the National Conference, and even the Congress. You are not ruling that out. Yeah, I mean, party leadership is, deliberating on that at this moment, and it is up to them because they are weighing all the options available and what will be the best option for the betterment of the people, for the betterment of the state, for the integrity of the state, and they will take that chance. Wonderful, right? And one final word from you, ma'am, on the fact that in terms of the Chief Minister of the state, now, from what we are hearing, in all likelihood, it'll probably be Mufti Saab himself who will be the Chief Minister. What have you heard? What can you tell us? Definitely, it will be Mufti Sahab, and Mufti Sahab का जो political stature है, जी, उसके बगैर इस रियासत को इन हालात में नहीं चला सकता। कोई नहीं है जो चला सकता है रियासत जम्मू कश्मीर को, जो उसकी प्रेजेंट पोजीशन है। So definitely it will be Mufti Saab, and I am 100% sure. Right, now I said it was the last question. This is really the last question. Now, this really is the last question. Now, let's say the government has been formed. Mufti Saab is the Chief Minister. What would you expect him to do as a citizen of Kashmir, as a citizen of Jammu and Kashmir? What will be your expectation from the new government, ma'am? Number one priority, first, we have got a flood affectees here, hundreds and thousands. This is our first priority, to give shelter to them. Number one priority, to get funds from Prime Minister, because we haven't got any funds from Prime Minister yet. We are waiting for that. So number one priority is to first look after these flood affectees. The flood affected, यानी जो सैलाब आया था जेलम में, जिसकी वजह से न जाने कितने लाखों लोग घर से बेघर हो गए, आज भी वो घर बेघर हैं, आज भी। जी, नंबर वन प्रायोरिटी हमारी ये होगी। नंबर टू प्रायोरिटी हमारी ये होगी, जो आर्टिकल 370 है उसको टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर, बिकॉज इट्स द ब्रिज बिटवीन इंडिया
and Jammu and Kashmir. That's right. Yeah. So number 2. And number 3 will be to remove this AFSA, revoke this AFSA Special Powers Act. Ji. Because if we can hold elections in Jammu and Kashmir, that means it's normal. Ji. Some incidents happen here and there, but still we don't need AFSA here now. And Right. then self-rule formula, because that's in our agenda, to open all these LOC border and to have soft border, give people chance to go there and they can come here. यानी कहने का मतलब ये हुआ जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है इस वक्त, जी। यहाँ से वहाँ जिस प्रकार पहले बसें चलती थी, गाड़ियां चलती थी, बिल्कुल। एक बार फिर शुरू हो जाए और उससे भी ज्यादा अच्छा हो। यानी उससे भी अच्छा, बल्कि कुछ पॉइंट्स पे हमने और दिया है कि जहाँ जहाँ से सड़क खोलनी चाहिए LOC पे, ताकि LOC पे कारोबार जिस तरह से तिजारत हो रहा है वो हो जाए और लोग भी आए जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जी। कोई लेकिन मैम आज भी श्रीनगर में सिनेमा हॉल खुले नहीं है। मैं आप ये नहीं चाहेंगे कि श्रीनगर में मॉल्स हों, सुपरमार्केट्स हों, मल्टीप्लेक्सेस हों, वहां पर जिस तरीके से बच्चे हर जगह पे, हर शहर में हिंदुस्तान के जाते हैं, श्रीनगर में भी उसी तरीके से जाएं, फुटबॉल मैचेस हों, क्रिकेट मैचेस हों। जी, वो तभी होगा जब यहाँ पे आपके शहरों में मिलिट्री बंकर न होंगे। जी, जब आप बंकर हटाएंगे, डीमिलिटराइजेशन होगी पूरे शहरों में, एरियाज में, यहाँ पे सिनेमा हॉल खुद ही खुलेंगे, बड़े बड़े मॉल्स होंगे, एंड आई एम श्योर द सिचुएशन विल बी टोटली डिफरेंट। मैम लेकिन आज की तारीख में मिलिट्री बंकर्स वहां पर ये कहा जाता है इसलिए हैं क्योंकि बार बार आतंकवादियों के हमले होते हैं, इस वजह से। क्या आप ये कह रही हैं कि क्योंकि मिलिट्री वहां पर है इसलिए आतंकवादी के हमले होते हैं? आर यू सेइंग दैट? आर यू सेइंग द आर्मी इज द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि उससे यहाँ के आम लोगों में काफी इरिटेशन भी है और प्रॉब्लम्स भी हैं। यहाँ पे अगर आप आतंकवादी या चाहे जिस तरह के हमले आप कहते हैं, बहुत कम होते हैं और नहीं भी होते हैं। अगर आपने देखा होगा फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स कोई हमला नहीं है, या एक साल में आप देखें कितने हमले हुए हैं, बहुत कम हुए हैं, बल्कि अगर हुए ही हैं, ज्यादतियां हुई हैं, तो वो फौज की कुछ एक दो, जहां जैसे अभी नौगांव में हमला होता, 2 बच्चे मारे। But we can certainly say one thing, ma'am. I would like to interrupt you this for our viewers. जो नईमा जी कह रही हैं, जो नईमा मेजोर जी जो उन्होंने अभी कहा है, वो गौर फरमाने लायक है। जम्मू एंड कश्मीर में इतनी वायलेंस नहीं हुई है जितनी की असम में हुई है। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने बात रखना चाहता हूं। एज फार एज असम इज कंसर्न और छत्तीसगढ़ इज कंसर्न, और फॉर दैट मैटर हम यहां मुंबई से बोल रहे हैं, मुंबई के ही आगे जाकर के महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है गढ़चिरौली, जितनी वायलेंस वहां हुई है कश्मीर में उससे 10% भी नहीं हुई है। दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ आवर व्यूअर्स। जी मैम बताएं। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि जब हम इलेक्शन कर सकते हैं और इलेक्शन यहाँ पे जितना पीसफुल हुआ है जी, और इतनी तादाद में लोग निकले हैं, तो वो तो आपको एक इंडिकेशन तो देता है कि सिचुएशन यहाँ पे अब किसी हद तक नॉर्मल है और पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप किसी मोहल्ले में बंकर रखते हैं तो उससे उस मोहल्ले के लोगों में एक इरिटेशन है, वो इसको हिंदुस्तानी फौज समझते हैं जो हमारे अगेंस्ट आई है। तो यहाँ डिमिलिटराइजेशन का जो अगर फॉर्मूला जो हमने भी कहा है कि उसको उन एरियाज में से आपको खत्म करना होगा जहाँ सिचुएशन नॉर्मल लग रही है, जहाँ पे इस तरह के हमले नहीं होते हैं। So you are looking at withdrawal of Armed Forces Special Powers Act in a phased manner कि जहाँ जो सेंसिटिव जोन नहीं है, वहाँ जो नॉर्मल सी पे आ गए हैं, वहाँ से आप फौज विड्रॉ करें। आई थिंक दैट साउंड्स रीजनेबल इनफ। I don't think anybody should have any objection to that. मुझे तो नहीं लगता कि उस पर किसी की कोई ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। नहीं, बीजेपी को और अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो that means there is a vested interest in keeping the things on the boil. कहने का मतलब ये हुआ। Right. Thank you so much, Naima ji, and hopefully when we talk again, the new government would have been installed in Srinagar with Mufti Saab at the head of the government, and hopefully you'll have a deputy chief minister from the BJP. Right. Thank you so much. Thank you so much, Naima. Thank you. So nice. Awesome. Bye. And that, of course, was Naima Mehjoor, journalist, former staffer of the BBC. She served at BBC London. My mistake. I thought she had served in BBC in the Kashmir Valley, but she wasn't. She was in BBC London. Or now, of course, very active member of the PDP. और जैसा कि आपने सुना, जहां तक कश्मीर का सवाल है, in all likelihood, this is my prediction, and मैं एक बार फिर, now I don't want to say I told you so, but I will still say it anyway. याद रखें, महाराष्ट्र में जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन नहीं हुआ था, याद रखें, महाराष्ट्र में जब
भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक दूसरे के ऊपर ना जाने क्या आरोप लगा रहे थे, लांछन लगा रहे थे। यही एक शो था, यही एक चैनल था जिसने बार बार सिर्फ एक ही बात कही थी कि अभी ये सब जाने दीजिए, आखिर में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को साथ आना ही होगा। और वो साथ आए। ये भी कहा था और आज भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी, एक को 28 सीटें मिली हैं, एक को 25 मिली हैं, इन दोनों को साथ आना ही पड़ेगा, साथ आना ही पड़ेगा। साफ तौर पर यह आपके सामने मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, जब से नतीजे आए हैं जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के, कि पीडीपी सरकार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से, और पीडीपी और बीजेपी इन ऑल लाइकलीहुड will be part of the same government. Mufti Saab, Mufti Muhammad Saeed is a very, very matured politician. Mr. Narendra Modi is a very, very matured politician. अमित शाह जी बहुत मैच्योर्ड किस्म के शख्स हैं, और महबूबा मुफ्ती सईद पीडीपी की जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं यानी वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, शी ऑल्सो नोज एग्जैक्टली व्हाट इज व्हाट, एंड वेरी फ्रैंकली द बेस्ट सोल्यूशन for the political problems of Jammu and Kashmir will be a PDP-BJP government. And remember, you heard it right here first. And remember, you heard it right here first. And every time we've been proven absolutely correct. Right, time for us to take a break. Time for us to take a break on the inside story. When we come back, we'll talk about something really and truly tragic. Not just tragic, something catastrophic. याद रखें, जहां पर अच्छे दिन की बात कर रहे थे लोग, जहां पर ये लोग बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में सरकार आने के बाद ना जाने क्या हो जाएगा, बड़े सब्ज बाग दिखाए गए थे। पिछले 3 दिनों में 72 घंटों में 12 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है विदर्भ में। 12 से ज्यादा विदर्भ में किसानों ने आत्महत्या की है, यानी 4 किसान एक दिन में। और उस विषय में ना कोई और चैनल बात कर रहा है, ना कोई और मीडिया हाउस बात कर रहा है। कल आप अगर अखबार भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे अखबारों की कृतियों में पेज नंबर 4 पर, पेज नंबर 10 पर एक छोटे से कॉलम में शायद आएगा अगर आएगा। दुख की बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में न जाने कितने लोग विदर्भ के हैं, मंत्रियों में न जाने लोग कितने लोग विदर्भ के हैं, और आज भी हम लोग किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाए। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो तुरंत लॉग इन कीजिए www.lemonnews.com पर, या तुरंत अपना मोबाइल फोन उठाइए और टाइप कीजिए लेमन न्यूज स्पेस आपका नाम स्पेस पता स्पेस आपका सुझाव या आपका सवाल और भेज दीजिए 56767 पर। कौन है जो युवाओं के खून में भर रहा है जहर? कौन है जो देश की अर्थव्यवस्था को कर रहा है खोखला? कौन है जो रच रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद की साजिश? अब होगा हर अपराधी बेनकाब।
Right, you're watching me. There's Rajiv K. Bajaj on Inside Story on 11 News. यहाँ आप मुझे देख रहे हैं. मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज. RKB on Inside Story at 11 News. और आप अगर हमें कुछ भेजना चाहते हैं, आप भेजें on insidestory@11news.com. आप लोगों के जो मेल आए हैं, आप लोगों ने जो SMS किए हैं, ज़्यादातर आप सब लोगों ने यही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में, PDP के साथ ही बनानी चाहिए. आप सब लोगों ने ये भी कहा है कि ये सिर्फ कश्मीर के हित में नहीं है, देश के भी हित में है. जी हाँ, लेकिन जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, चलो कश्मीर की बात तो एक तरफ हो गई. आज हम बात करेंगे 21वीं सदी में अच्छे दिन आने के बाद विदर्भ में किसानों की आत्महत्याओं के बारे में. याद रखें, जहां तक इस शो का सवाल है, इस चैनल का सवाल है, शुरू से आज तक हम लोग अकेले हैं जो आज तक बात कर रहे हैं कि विदर्भ में हर रोज तकरीबन 4 या 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं और कोई उनकी तरफ देख नहीं रहा है. इस वक्त हमारे साथ हैं आदरणीय सांसद राजू शेट्टी साहब. राजू शेट्टी साहब नमस्कार. नमस्कार. राजीव कुमार बजाज बोल रहा हूं इनसाइड स्टोरी से, फ्रॉम 11 न्यूज. दिस इज RKB फ्रॉम 11 न्यूज टॉकिंग टू यू. शेट्टी साहब, पिछले 72 घंटों में 12 किसानों ने आत्महत्या की है. 12 और भी आत्महत्या बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पूरे देश में जो किसानों की आत्महत्या हो रही है उसकी समस्या का जड़ यह है कि किसानों को लागत मूल्य से भी कम दाम मार्केट में मिल रहा है जी. ना सरकार उसके बारे में कुछ चिंता कर रही है, ना कोई सोसाइटी चिंता कर रही है. और जी. जो भी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं वो ऊपर की सुझाव सुझा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. जब तक किसान की जो खेती है घाटे में है, तब तक किसानों की आत्महत्या ऐसी होती रहेगी. लेकिन राजू शेट्टी साहब, सबसे बड़ी बात यहां पर यह सामने आती है जो हम लोगों ने पाया है, क्योंकि किसान जो हैं बड़े शांति पसंद लोग हैं. बेचारे वो अपना काम करते हैं, कोई कपास उगाता है, कोई कुछ और उगाता है, कोई कुछ और उगाता है, अपने काम में वो व्यस्त है. उसको जरा भी ये फिक्र नहीं है कि मुझे जाकर के इंडस्ट्रियल एक्शन लेना है, मुझे कहीं कुछ तोड़ना है, सरपंच का ऑफिस तोड़ना है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जाकर के मुझे आगजनी करनी है, या हाईवे के ऊपर खड़े होकर के मुझे ट्रैफिक रोकना है. राजू शेट्टी साहब, आप मुझे ये बताएं कि हमारा मीडिया, हमारी सरकार, हमारा प्रशासन सिर्फ उन्हीं लोगों की तरफ देखता है जो तोड़ फोड़ करते हैं. तो किसान अब क्या वक्त आ गया है किसानों को कि उठ करके अपने हकों के लिए इस तरीके से लड़ें? राजू शेट्टी साहब बताएं. दुर्भाग्य से ये बात सही है कि आज पूरे सिस्टम पे, सरकार पे किसानों का भरोसा उठ चुका है. इसलिए इन सब के ऊपर विश्वास दिखाते हुए वो आत्महत्या कर रहा है जी. पिछले हफ्ते में मैंने पार्लियामेंट में सरकार को यही कहा है जी कि मोदी साहब जब पार्लियामेंट के चुनाव में पूरे देश में घूम रहे थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि किसानों को लागत मूल्य से 50% मुनाफा का हिसाब करके हम समर्थन मूल्य देंगे जी. क्या वो आश्वासन भूल गए? जी. अगर इसी तरह से किसान आत्महत्या करते रहेंगे तो जी. वो दिन दूर नहीं है जिस दिन किसान के घर में जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनके दिमाग में बगावत पैदा होगी और जी. वो आत्महत्या के वजह हत्या करने के लिए सड़क पर उतरेंगे जी. आप भी वही कह रहे हैं. अब एक दिन होना ही है, इसलिए मैंने सावधान किया है, सरकार को सावधान किया है, पूरी सोसाइटी को. लेकिन दुर्भाग्य से आज भी उसी तरफ कोई गंभीरता से सोच नहीं रहा है, कोई इसके बारे में कुछ कोशिश नहीं कर रहा है. राजू शेट्टी साहब, भारत में एक बहुत बड़ा अग्रेरियन क्राइसिस चल रहा है. बहुत बड़ा किसानों को लेकर के, कृषि को लेकर के एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है जिसको कोई देख नहीं रहा है. या तो ये क्यों, और ये क्राइसिस मैन मेड है,
ये क्राइसिस प्रशासन की, सरकारों की गलत और बहुत ही ज्यादा सेल्फिश नीतियों की वजह से हुआ है। जी। साफ तौर पे जो हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया है, विश्लेषण किया है, वो सिर्फ ये है कि क्योंकि मल्टीनेशनल्स को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आपको यहां पर लाना है और हर किसान को आपको मोन्सांटो का या कारगिल का या किसी और ऐसी बड़ी कंपनी का गुलाम बनाना है, इसलिए आप कुछ जान करके नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपका भी विश्लेषण यही है या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो बताएं। उसमें मैं थोड़ा सा सुझाव दे रहा हूं कि इनको ये करना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के कब्जे में जो जमीन है जी, वो जमीन ये हड़पना चाहते हैं, इसलिए उस वक्त इनको जमीन मिलेगा तब जब किसान भिखारी हो जाएगा, बेबस हो जाएगा, बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। और साथ ही साथ ये चाहते हैं कि इनका जो ऐश आरामी जीवन है, इनके लिए उनको गुलामों की आवश्यकता है और ये गुलाम को जन्म देने के लिए किसानों की आवश्यकता है। इसलिए जितना किसान गरीब रहेगा, बेबस रहेगा, इनको ज्यादा से ज्यादा गुलाम मिलते रहेगी, यही व्यवस्था ये बढ़ा रहे हैं। जी, कहने का मतलब ये हुआ कि जहां तक के किसानों की जमीनों का प्रश्न है, सबकी आंखें किसानों की जमीनों पर हैं। आगे जाकर के वहां पर SEZ बनेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, वहां पर जाकर के ट्रांसपोर्ट हब्स बनेंगे, वहां पर जाके ना जाने क्या कुछ बनेगा। और जो बेचारे किसान हैं वहां के, उन सब को सब हर कोई भूल करके, उनको पीछे करके, उनका जो पूरा का पूरा जो उनका एक समा है उसको खत्म करके वहां पे कब्रिस्तान बनाने की पूरी कोशिश है। अब राजू शेट्टी साहब, आप ये बताएं, आप किसान नेता हैं, आज जहां तक आपका प्रश्न है कि आपके किसान आपकी ओर देखते हैं, किसानों को इस वक्त क्या करना चाहिए? प्रशासन की बात आप छोड़िए, ये नया प्रशासन जो आया, 7 महीने हो गए सरकार को, इन 7 महीनों में कुछ नहीं किया तो आगे 7 साल में क्या करेंगे? आप ये बताएं, किसानों को क्या करना चाहिए और आप क्या करने वाले हैं, बताएं। किसानों को अपने मुद्दों के लिए एकजुट होना चाहिए, क्योंकि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन किसानों की संख्या बहुत बड़ी तादाद से है। अगर सब ऑर्गेनाइज होके एक साथ आकर अगर प्रशासन को हिला भी सकते हैं और इस देश में वो वोट बैंक की राजनीति चलती है, तो क्यों ना किसान अपने वोट बैंक बनाए। और क्योंकि पॉलिटिशियन अगर किसको डरते हैं तो वोट बैंक को डरते हैं। दुरुस्त बात। और इसी वोट बैंक की राजनीति हमें किसानों के भी करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ये आज नहीं हो पा रहा है। किसान अलग अलग खेमों में हो, जाति हो, धर्म हो, या बड़ा किसान, छोटा किसान, इस तरह से बट गया है। सब किसानों को एकजुट होना चाहिए, एक लेवल पे एक साथ आना चाहिए, तभी समस्या हल हो सकती है। दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन ऐसा हो क्यों नहीं रहा? राजू शेट्टी साहब, आप भी इसमें सक्रिय हैं, आप भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार हर प्रोफेशन की एक ना एक लॉबी होती है। मेडिकल लॉबी अलग है, इंजीनियर्स की लॉबी अलग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो लॉबी है वो अलग है। जहां तक फार्मर्स की लॉबी है, वो फार्मर लॉबी इकट्ठे होकर के क्यों काम नहीं कर रही है? राजू शेट्टी साहब बताएं। इसमें समस्या यह है कि ये लॉबिंग सिर्फ अपने खेती के लिए होना चाहिए जी, लेकिन हमारे घर में जो पैदा हुए बच्चे लोग हैं जो अलग अलग लॉबी में है, वो ये चाहते हैं कि खुद अपना सगा भाई का खेत चाहता है जी, वो जमीन हड़पना चाहता है जी, तो यही लॉबिंग नहीं हो सकते। एक भाई इस खेमे में, वो एक भाई दूसरे खेमे में, तो एक पैसा कमा रहा है, उसको ऐसा लगता है कि गांव का भाई अनपढ़ है, कमा रहा है, उसकी जमीन मेरे कब्जे में आनी चाहिए। इस तरह से तो अगर ये लॉबिंग होना है तो ये कृषि धर्म पे, कृषि क्षेत्र में जो भी काम कर रहे हैं उनकी होनी चाहिए, ना उसमें कोई परिवारवाद होना चाहिए, ना और ना होना चाहिए। और यही हम मार खा रहे हैं। और दूसरी चीज आप बताना भूल गए, जो खैर अभी आपने बताया था, माफ कीजिएगा आप नहीं भूले, आपने कहा था। और दूसरी चीज जो इसके खिलाफ शायद काम कर रही है वो जातिवाद है, कि कौन किसान कौन सी जाति का है, कौन शेड्यूल कास्ट है, कौन शेड्यूल ट्राइब में आता है, कौन राजपूत है, कौन क्या है। अब उसमें अब इन सब लोगों को एकत्रित किस प्रकार किया जाए, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। आप ये बताएं कि इसमें जितने भी किसान नेता हैं,
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग इकट्ठे आकर के एक ही मंच पर आकर के, जैसे एक बार प्रयास हुआ था, भारत किसान यूनियन जब बनाई गई थी, एक बार प्रयास हुआ था, सब लोग इकट्ठे आकर के एक ही मंच पर बहुत किसान आए थे, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट ने उसको तोड़ दिया। क्या एक बार फिर यह प्रयास नहीं हो सकता? बताएं। मैं होना चाहिए, और मैं खुद कर रहा हूँ पूरे देश में घूमकर, देश के कोने कोने से जो किसान नेता है, चाहे वो जिला क्षेत्र में काम करने वाले हो, स्टेट लेवल पे काम करने वाले हो, सबको इकट्ठा करके सब किसान नेताओं को एकजुट करने की कोशिश मैं तो कर रहा हूँ। और मेरे पास जो भी किसानों की समस्या लेके आता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आए हो या मध्य प्रदेश से आए हो या साउथ एरिया से आए हो, हर एक किसानों की समस्या लेकर मैं तो संघर्ष करता रहता हूँ, और मेरी कोशिश भी जारी है, और मुझे पूरी आशा है कि एक दिन मैं इसमें सफल हो जाऊंगा। जी, आपको पूरी आशा है कि एक दिन आप इसमें सफल हो जाएंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि आप सफल हों, क्योंकि आपकी सफलता में ही पूरी देश की सफलता है। क्योंकि जैसा अभी अभी राजू शेट्टी साहब आपने कहा, और मैं अपने दर्शकों से पूछना चाह रहा हूं कि आज किसान आत्महत्या कर रहा है, कल वो आपकी और मेरी हत्या करेगा। वो हल उठा करके जो आज की तारीख में धरती का सीना चीर करके आपके लिए खाना पैदा करता है, अगले दिन वो आपका और मेरा सीना चीरेगा। फिर आप लोग क्या करेंगे जब वही किसान आज जो आत्महत्या कर रहा है उठ करके नागपुर में, नासिक में, पुणे में, मुंबई में आकर के आपका घेराव करेगा, लाल झंडा दिखा करके वो नक्सलवादी बनेगा? क्या उस वक्त हम लोग जागेंगे? राजू शेट्टी साहब आप बताएं, क्या अब वक्त नहीं आ गया सरकार को जागने का? क्या नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसको वक्त नहीं आ गया जागने का कि भाई 7 महीने हो गए हैं, गढ़चिरौली याद रखें बहुत पास में ही है, सिर्फ किसान को उठना है और तकरीबन 50 के 100 मील इस तरफ जाना है और वो आतंकवादी बन जाएगा। क्या उसके बाद हमारी सरकार जागेगी? राजू शेट्टी साहब, मैंने बार बार पार्लियामेंट में यही चेतावनी दी है, पूरे सरकार को भी दे दी और पूरे समाज को भी। गुनाहगार सिर्फ सरकार नहीं, समाज भी है, क्योंकि हर एक ये चाहता है कि किसान की जमीन आगे मिलना चाहिए, किसान के खेत में जो भी सब्जी हो या फल हो या फसल हो वो सस्ते में मिलना चाहिए। ये मानसिकता आज समाज की भी है। हम सबको सोचना चाहिए कि इस तरह से हम किसानों को लूटते रहेंगे तो एक दिन हल की जगह वो तलवार लेकर, बंदूक लेकर सड़क पे आ सकता है। और आखिरी सवाल आपसे ये, नरेंद्र मोदी जी ने, अभी ये महेंद्र सिंह साहब इंजीनियर हैं, उन्होंने कुछ भेजा है हमको, नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वच्छता अभियान चलाया है, ये हमारे दर्शकों के लिए। राजू शेट्टी साहब आदरणीय सांसद इस वक्त हमारे साथ हैं। राजू शेट्टी साहब, मेक इन इंडिया अभियान भी चलाया है, यानी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जी, लेकिन मैंने तो नहीं सुना कि उन्होंने किसानों के वेलफेयर के लिए कोई अभियान चलाया हो। राजू शेट्टी साहब, अगर चलाए होते तो सबसे ज्यादा आनंद मुझे होता है, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य से नहीं हो रहा है। मेक इन इंडिया की जगह हमारे किसान का जो फसल है वो पूरे विश्व में जाए, उसको अच्छा दाम मिले, उसको पैसा मिले, और हमारा किसान भी हवाई जहाज से घूम सके, इतनी उसकी ताकत निर्माण हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी को कोशिश करना चाहिए। आपको लगता नहीं है क्या प्रधानमंत्री जी को जाग करके मेक इन इंडिया को इतना बड़ा करना चाहिए कि मेक इन इंडिया का मतलब ये भी है कि जो हमारा कृषि उत्पाद है उसको भी मेक इन इंडिया में शामिल किया जाए? अगर मेक इन इंडिया सफल करना है तो ये भारत कृषि प्रधान भारत है जी, तो इसलिए इससे पहले यहाँ की खेती संभलनी होगी, खेती सुधारनी होगी, खेती को अच्छे दिन आने चाहिए, तभी मेक इन इंडिया सफल हो जाएगा जी। लेकिन आज तक नहीं हुआ ऐसा। फिलहाल राजू शेट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। राजू शेट्टी साहब आदरणीय सांसद, किसान नेता, महाराष्ट्र के किसान नेता, इन्होंने यह कहा कि जहां तक पार्लियामेंट का सवाल है, संसद का सवाल है, संसद में उठ करके इन्होंने यह सवाल उठाया कि आज किसान आत्महत्या कर रहा है, कल वो हत्या करेगा। आज वो अपनी हत्या कर रहा है, कल वो आपकी और मेरी हत्या करेगा। आज वो बेचारा लाचार है, कल वो नक्सलवादी बनेगा, फिर आतंकवादी बनेगा। फिर क्या सरकार उठ करके ये कहेगी कि कृषि में क्राइसिस है, यानी एग्रीकल्चरल क्राइसिस है, जिस बात को हम लोग पिछले 10 साल से चीख चीख कर बोल रहे हैं कि आप कृपा करके उठ जाइए,
क्योंकि नई नस्ल जो आई है किसानों की, वो इस प्रकार आगे अन्याय सहने वाली नहीं है, नाइंसाफी सहने वाली नहीं है। अगले साल को, नए साल को आने के लिए सिर्फ 2 या 3 या 4 दिन ही बचे हैं, और उसके ही पहले पिछले 3 दिनों में 12 किसानों ने सिर्फ विदर्भ क्षेत्र में आत्महत्या कर ली। मराठवाड़ा की मैं बात नहीं कर रहा, खानदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ विदर्भ में ही 12 किसानों ने आत्महत्या की है। 12 यानी 4 किसान एक दिन में, और यह एवरेज है। वैसे महाराष्ट्र में 4 से 6 किसान हर रोज आत्महत्या करते हैं। अगर 5 का भी एवरेज आप लेते हैं तो 365 दिनों में कितने हुए, खुद हिसाब लगाइए। 1825 किसान एक साल में आत्महत्या करते हैं, और किसी की नाक पर जूं तक नहीं रेंगती है। मेरा यह कहना है, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं हम, और वो दिन बहुत दूर नहीं है। मैं ये भेड़िया आया वाले की बात नहीं कर रहा हूं। आप सुन रहे हैं मुझको 10 साल से ये कहते हुए कि एक वो दिन आएगा जब किसान अपनी आत्महत्या नहीं, आपकी और मेरी हत्या करेगा। वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। किशोर तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार राजीव। किशोर तिवारी जी, आपका स्वागत है इनसाइड स्टोरी ऑन लेमन न्यूज पर एक बार फिर। किशोर तिवारी जी, पिछले 3 दिनों में, पिछले 72 घंटों में 12 किसानों ने आत्महत्या की है। 12। आप ये बताएं किशोर तिवारी जी कि अब किसान कब सड़क पर आएगा? अब तो आइए। अब क्या, अब जहां तक के मोदी सरकार के अच्छे दिनों वाली बात थी, क्या यही थे अच्छे दिन जो उनको दिखाने थे? उन्होंने हर चीज की बात करी। स्वच्छता अभियान शुरू किया, शिक्षक अभियान शुरू किया, मोदी जी ने गुड गवर्नेंस का अभियान शुरू किया, मोदी जी ने मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया, लेकिन मोदी जी ने जय किसान अभियान अभी तक नहीं शुरू किया। किशोर तिवारी जी बताएं। आपने कुछ दुरुस्त बात कही, क्योंकि मोदी जी के जो चुनाव के भाषण थे जी, उसमें शायद उनके जो आधे घंटे के भाषण का आधा समय किसान की समस्या पे जाता और किसान आत्महत्या पे भी जाता, और वो अपने भाषण में कुछ उपाय बताते जी। तो उपाय में पहली बात करते कि उपज के दाम मिलेंगे और सरकार खरीदेगी जी। और उपज के दाम मिलने के लिए वो स्वामीनाथन ने जो फार्मूला दिया था कि लागत और 50% नफा ऐसा मिलेगा जी। दूसरी बात कहती थी कि सूदखोरों से इजाफा देके वो बैंकों से कर्ज दिलाएंगे जी। तीसरी बात थी, तो अभी वो क्या हुआ कि जैसे ही सत्ता में आए जी और उन्हें निरंकुश सत्ता मिली, तब से ये बात वो भूल गए। अभी वो कहने लगे कि किसान आत्महत्या के कारण बिजली और पानी है जी। ये मुझे समझ में नहीं आया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो 12 किसानों ने आत्महत्या की है जी, तो इस किसानों के बारे में आज की जो किसान थे हमारे, वो किसान तो पहली बार मैंने देखा इस साल के अल्पसंख्यक किसान ने आत्महत्या की है, जो चिखल वर्धा गांव के थे। इस किसान ने अपनी सूखी जमीन बेचकर सिंचाई की जमीन ली थी जी, और सिंचाई की खेती करते हुए उसने आत्महत्या की थी जी। दूसरा एक किसान जिसके बारे में मैं बताता हूँ कि उसने आत्महत्या करने के पहले अपने पत्नी को फोन किया कि भाई बच्चों की पढ़ाई मुझसे नहीं होगी, अब तू पढ़ाई करना। दोनों बच्चों को उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर रखा। एक लड़का फाइनल ईयर में है, दूसरा लड़का सेकंड ईयर में है। तो मैं आपको बताऊं कि विदर्भ के कृषि संकट पे हम और आप पिछले 10-12 साल से तो बात कर ही रहे हैं और समस्याओं पे भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये साल का ये जो है कि पिछले 3 साल से सूखा पड़ते गया और इस साल सब चीजों के दाम गिर गए ना। अभी आप देखो हमारे जो नकदी फसल है कपास और सोयाबीन, इसके दाम गिर गए। अरे हमारे लागत का खर्चा अगर दुगना होता है और सूखा पड़ने से उपज आधी हो जाती है और बाजार में दाम गिर जाते हैं, तो सरकार को इंटरवेंशन में आना पड़ेगा। अब कैसा हुआ कि ये जो महाराष्ट्र में सरकार बनी तो मैं तुम्हें बताऊं कि पिछले महीने में मराठवाड़ा विदर्भ के अंदर करीबन 120 किसानों ने आत्महत्या की थी और इस महीने के अभी तो 26 तारीख तक विदर्भ में करीबन 52 किसान हो गए और मराठवाड़ा में तो ज्यादा हो गए। तो इससे क्या हुआ कि किसानों की आत्महत्या हो रही है और सरकार ने फिर से बोला है
कि 7,000 करोड़ का हम पैकेज दे रहे हैं। जी। तो मुझे बताओ ये पैकेज कौन बनाता है? अब कैसा हो रहा है कि किसान समस्याओं पे एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे वाले बाबू लोग पैकेज बनाते हैं। जी। तो मुझे समझ में नहीं आता, हरदम ये पैकेज किसी चंद ठेकेदारों और चंद एजेंसियों या बैंकों के लिए क्यों बनते हैं? और ये पैकेज जाते कहां हैं? सबसे पहला चिदम्बरम साहब का 72,000 करोड़ का पैकेज, और अब ये कोई नया 50,000 करोड़ का पैकेज, कोई और पैकेज, और वो सारा का सारा कोऑपरेटिव बैंक में जाता है, किसानों के पास कुछ नहीं पहुंचता है। किशोर तिवारी जी, कैसा था राजू जी, ये लोग पैरवी करते थे कि ये सब पैसा लूट खा गए जी। ये पैसा महाराष्ट्र के लिए विदर्भ प्रांत पर ही 60,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जी। तो ये कहते थे कि बैंक वाले लूट गए और सिंचाई का पैसा नेता लोग खा गए। ये लोग लिस्ट बनाते थे और चुनाव के वक्त कहते थे कि सत्ता में आने के 2 दिन के अंदर ये जो पैसा खा गए उनको हम जेल में भेजेंगे। दुरुस्त बात है, कहा था, बिल्कुल कहा था, कहा ही नहीं था किशोर तिवारी जी। देवेंद्र फडणवीस जी ने अपनी फेसबुक पेज पे लिखा है। और तो और छोड़िए जी, बताएं कैसा है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमने यूपीए 2 में उनको बहुत आरोप लगाए, हमने मोदी जी पे बहुत विश्वास दिखाया, किसानों ने भी दिखाया। विदर्भ के किसानों ने तो एक मुश्त उनको इलेक्शन में दिया और विधानसभा में भी दिया। और कैसा हुआ कि लोग अब अलग निराशा में चले गए कि आप तो भूल ही गए वो 7/12 कोरा करना, यानी किसानों के कर्जे माफ करना, और तो और किसानों को उपज के दाम देना। इस बात पे बात ही नहीं हो रही जी। फिर कैसा है कि कांग्रेस ने 15 साल कुछ किया नहीं, कांग्रेस और वो जो बात करना नहीं चाहते जी। तो वो हुआ क्या है कि मैं आपको बताऊं कि जब तक शिवसेना का सत्ता में शामिल नहीं हुई थी जी, तो वो बीजेपी की सरकार एक पक्ष की थी, तो वो कूद पड़े थे इस पे, और वो विरोधी पक्ष के नेता बन गए थे। जो अभी महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है शिंदे, तो औरंगाबाद में किसान के घर वह गए थे। लेकिन अब नागपुर में सेशन चल रहा था और दररोज 2 किसान और 3 किसानों की आत्महत्या की खबर आ रही थी। तो जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले थे उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा जी। तो समझ में नहीं आया कि और वो सब इसलिए है किशोर तिवारी जी, वो सारा का सारा इसलिए है क्योंकि अभी तक किसानों ने अपनी बाकायदा लॉबी नहीं बनाई है। अभी तक आप लोगों ने अपना प्रेशर ग्रुप नहीं बनाया है। आप ये इंश्योर नहीं कर सकते, जहां तक के सरकार का प्रश्न है, कि आपके वोट के बगैर सरकार गिर जाएगी। जातिवाद से उठकर, प्रांतवाद से उठकर जब तक के किसान इकट्ठे नहीं आएंगे और सभी के सभी किसान एक मंच पर नहीं आएंगे, ये सरकार जागेगी नहीं, भले जो मर्जी सरकार हो, कांग्रेस एनसीपी की हो या शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की हो। किशोर तिवारी जी, ऐसा मेरा मानना है, आप बताएं। आपने ये तो बहुत दुरुस्त बात की, क्योंकि आप एक बाहर से देखते हुए आप एक बराबर इसका एनालिसिस कर पा रहे हैं कि किसानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि किसान जब भी चुनाव आते हैं तो वो लोग अपनी जाति के उम्मीदवार और पॉलिटिकल लाइन ले लेते हैं, और बाद में जो लोग इकोनॉमिक एजेंडा रखते नहीं है उनके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाते। अब ये तो बेईमानी हो गई ना। अब देखो, मराठवाड़ा, विदर्भ और खानदेश और नॉर्थ महाराष्ट्र के किसान स्थल पूरे बर्बाद हो गए और किसानों के वोट पर सुनते आने वाले लोग उनसे बेईमान हो गए। तो कम से कम बेईमान होने का हिसाब तो लेना चाहिए जी। ये भी नहीं समझ में आ रहा। और किसान नेता कैसे है, राजू शेट्टी तरीके, वो अपना पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन में टाइम पास कर रहे हैं। तो उनको मुझे मालूम नहीं, इतना अपमान होने के बाद भी वो पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन के लिए बैठे हैं कि कहीं एमएलसी मिल जाएगा या कभी एक्सपांशन में कोई नंबर लग जाएगा। तो हमने हमारे नेता पॉलिटिकल लॉबिंग के अलावा अपने पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन में खो दिए। और मैं तो साफ सतूरी बात करता हूँ कि नेताओं के विश्वासघात से किसानों का ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन आज की तारीख में आप ये बताएं, इस विषय के बारे में हम लोग कई बार पहले भी बात कर चुके हैं, क्योंकि अभी बताएं, ठंड का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कपास और सोयाबीन दोनों की कीमत जो है वो बिल्कुल आधी से भी कम हो गई है। आज की तारीख में बाजार में कोई मदद करने को तैयार नहीं है, बैंक पैसा देने को तैयार नहीं है, साहूकार इसलिए पैसा नहीं दे रहा क्योंकि उसकी जमीन पहले से ही गिरवी है। आज की तारीख में किसान सड़क पर कब आएगा? किशोर तिवारी जी, ये बताएं। मुझे लगता है किसान के प्रति मैं कुछ बड़े आंदोलन की अपेक्षा तो नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने टूटे हुए हालत में किसान कोई बड़ा आंदोलन करेगा नहीं।
लेकिन ये जो आंदोलन हो रहा है कि किसान जो आत्मघात कर रहे हैं और एक असंतोष नई पीढ़ी में आ रहा है, शायद ये नया नेतृत्व कोई आए और वो कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाए तो होगा। लेकिन अगर इस प्रकार के आत्मघात होते हैं तो जो सिविल सोसाइटी अपने आप को कहती है, तो लोगों ने सामने आके बात करना चाहिए। और मीडिया के अंदर भी मैं देख रहा हूँ अजय जी कि आपके चैनल के अलावा तो आज कोई चर्चा भी नहीं हो रही, इतनी बड़ी खबर है कहीं नहीं चल रही। और इतना भाई मोदी का कोई दबाव है या क्या है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन एक घटना है कि 12 किसान अगर मर गए तो एक बहुत बड़ी घटना है, इसको तो होना चाहिए था। लेकिन मैं आपके चैनल पर कब आके कहूँ कि एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया है और सरकारें अब किसान के दबाव में अपने निर्णय जो मल्टीनेशनल कंपनियों को प्रोटेक्ट करने को जा रहे हैं वो निर्णय बदल रही है, ऐसी बात मैं कब कहूंगा। शायद मेरे जीवन में ये सौभाग्य मिले। यही किशोर तिवारी जी, जहां तक के मीडिया का प्रश्न है, जब तक के आगजनी नहीं होती है, जब तक के सड़क के ऊपर व्हीकल्स रोके नहीं जाते हैं, जब तक के मारकाट नहीं होती है, जब तक के मारपीट नहीं होती है, आखिरकार याद रखें कोकराझार डिस्ट्रिक्ट जो है, सोनितपुर जो है असम में, वहां पर यह समस्या ना जाने पता नहीं कितने सालों से बस सरफेस के नीचे थी, आग सिमट रही थी बड़ी। आज जब वहां 72 लोग मारे जा चुके हैं तो पूरा मीडिया जागा है, हर एक कोई वहां पर पहुंच गया है, हर एक कोई वहां पर पहुंच गया है मौत का व्यापारी बनके कि किस प्रकार यहां पे आतंकवादी हमला हुआ, बोडोज ने कैसे मारा, क्या मारा, कौन मरा, किस प्रकार किसको क्या हुआ, ये सारी की सारी घटनाएं, सारी की सारी कहानियां सामने आ रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बाकी मीडिया की तो बात ही मत करिए, किसान आत्महत्या कर रहा है क्योंकि किसान ग्लैमरस नहीं है, क्योंकि किसान कोई फिल्म एक्टर नहीं है, क्योंकि किसानों के ऊपर कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं बनती है, क्योंकि सलमान खान ने, शाहरुख खान ने, आमिर खान ने, अक्षय कुमार ने, ऋतिक रोशन ने, किसी ने फार्मर्स के बारे में कोई बात नहीं करी है, इसलिए मीडिया उस तरफ देखता तक नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अब ना आपको किसी ग्लैमर की जरूरत है, ना किसी और की जरूरत है, आपको केवल संगठन की जरूरत है। और आप जब तक किसानों को संगठित नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि नई पीढ़ी जो किसानों की आने वाली है, आखिरकार गढ़चिरौली कितना दूर है, विदर्भ से गढ़चिरौली कितना दूर है, वहीं तो है। आप ये बताइए कितना टाइम लगता है वहां जाने के लिए और कितना टाइम लगता है किसी किसान को नक्सलवादी बनने के लिए? किशोर तिवारी जी बताएं। नहीं, अभी तो जो बाधित जिले में कहा जाता है, जहाँ किसान आत्महत्या होने वाले जिले में आता है, विदर्भ का एक जिला ही है गढ़चिरौली और चंद्रपुर जी। इसमें आदि तो चंद्रपुर से लग के ही गढ़चिरौली है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स गढ़चिरौली का वहां से 15 किलोमीटर दूर है। यवतमाल जिले का भी बहुत सारा हिस्सा आदिलाबाद जैसे जुड़ा है जी। और नक्सली तो दररोज ही अपने वेबसाइट पर किसान आत्महत्या की हमारी खबर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। सरकार ने जागना चाहिए और जो लोग पेन से आंदोलन कर रहे हैं उनको सुन नहीं रहे हैं। तो ये एक गांव-गांव में अनरेस्ट चल रहा है और गांव-गांव में जो सत्ता बदलने के बाद भी परिस्थितियां बदलती नहीं, उसका अनरेस्ट है जी। लेकिन मुझे लगता है कि ये अनरेस्ट बहुत बड़े नरसंहार में जाए और उसके बाद ही सब हो। इसके पहले इतने पढ़े लिखे लोग सत्ता में आए हैं तो ये लोग क्यों निर्णय लेते नहीं और क्यों ये इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन की बात करने से पहले किशोर तिवारी जी मैं उम्मीद करता हूं, किशोर तिवारी जी मैं उम्मीद करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे मुख्यमंत्री बनने के पहले। नरेंद्र मोदी जी, आपने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे किसानों को लेकर के। आपने कहा था जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री का नारा आपने खुद ने दोहराया था। आज आप उसको भूल गए। मैं उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस याद करेंगे कि उन्होंने चुनावी अभियान में, चुनावी आंदोलन में क्या कुछ कहा और यहां पर कुछ ना कुछ करेंगे। किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, उनके कर्जे माफ करेंगे, उनकी जमीनें वापस उनको देंगे और उनका जीवन वापस उनको देंगे। क्योंकि आज जो किसान आत्महत्या कर रहा है, कल आपकी और मेरी हत्या करेगा। क्या उसके बाद सरकार जागेगी? और जहां तक बाकी मीडिया का प्रश्न है, जैसे मैंने आपको कहा, वहां पर ज्यादातर मौत के सौदागर हैं, जब तक के बल्कि हिंसा के सौदागर हैं। जब तक हिंसा नहीं होती बाकी मीडिया कवर नहीं करेगा। फिलहाल किशोर तिवारी जी, इस दुखद घटना के साथ और इस दुखद विश्लेषण के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर। थैंक यू। Right, as far as we are concerned, time for us to go as well. That's it. That's all we've got for you in tonight's Inside Story. आज की Inside Story में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें लेमन न्यूज़।
And of course, you can email us on insidestory@lemonnews.com, and you can also SMS us on 56767. आप लेमन न्यूज़ टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 56767 पर आप भेजें अपने SMS। क्या लगता है आपको, क्या आप किसानों के बारे में तब फिक्र करेंगे जब किसान जो धरती का सीना चीर करके आपके लिए गेहूं, चावल, कपास, सोयाबीन उगाता है, वो आकर के आपका और मेरा सीना चीरेगा? तब जाकर के क्या हम लोग जागेंगे? तब जाकर के क्या बाकी मीडिया जागेगा? आज सिर्फ लेमन न्यूज़ दिखा रहा है किसानों की आत्महत्या के बारे में। 12 किसानों ने आत्महत्या करी है 72 घंटों में। अगर एक भी फिल्म एक्टर अगर आत्महत्या कर लेता, अगर एक एक्स्ट्रा भी आत्महत्या कर लेता, तो आज की तारीख में सभी चैनल उसके बारे में दिखा रहे होते। 24-24 घंटे वही चल रहा होता। 12 किसानों ने आत्महत्या की, यानी 12 परिवार नष्ट हो गए, 12 परिवार बर्बाद हो गए। उसके बारे में और कोई बात ही नहीं कर रहा है। इससे ज्यादा दुखद बात क्या हो सकती है? Please do send in your mails on insidestory@lemonnews.com, or otherwise, of course, you can send in your SMSs on 56767. Type out Lemon News, type out your name, type out the name of the city you're watching us in, and send in your SMSs on 56767. That's it. That's all we've got for you in tonight's Inside Story. We'll, of course, be back with you at the same time tomorrow. Till then, keep watching Lemon News. Bye-bye. भिवंडी में आग से झुलसकर 8 लोगों की मौत, भंगार और लकड़ी के गोदामों में भीषण आग। बीजेपी शिवसेना के बीच शीत युद्ध जारी, शिवसेना दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारेगी अपने उम्मीदवार। पाकिस्तान का झूठ बेने का वेबसाइट mobile.in का दावा, कराची में शान से रहता है दाऊद, सबूत के तौर पर ऑडियो जारी। दाऊद के टेप पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा भारत की पाकिस्तान से हुई थी बात, फिलहाल पाक के जवाब का इंतजार। और झारखंड में बीजेपी के नए गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के विरोध में आदिवासी संगठन नेता ने किया बंद का ऐलान, बंद को झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। मैं हूं अलीम शेख। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लेमन न्यूज़ ने जो ड्रग्स, एमडी और मैथ के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, उसका असर हमें